launcher dilaga tatka donomani abel lagapta road side to launcher ready do don takam tar hadara launcher jawab kandara do Chief Minister of Arunachal Pradesh, Pema Khandu. At the Jagrung village. This is the media person. Kapur Gausi. Kapu dance, Adi war dance. This is the grandson of Marmur Jamo. The legendary picture of Jamo. Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh. Hello. Ladies and gentlemen, our guest of honor, our chief guest, our special invitees are finally here. Our honorable chief guest, the honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh. Pema Khandu, Chief Minister Pema Khandu and Honorable MP Kapur National Election Namara por Mayakame, hasta presentito la leyenda National Election Mayengo, que es la Mara por Mayakame. Our honorable chief guest of today's program, the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, Pema Khandu sir, will be unfurling the national flag.
हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेट मकबूल जमो की तस्वीर को चढ़ावा देंगे फूल चढ़ाकर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबसे दरखास्त है कि आप सर अपनी सीट फिर से ऑक्यूपाई कर लें। Arunachal Pradesh 3. Welcome to serve to felicitate the grandsons of the late Mahmood Jamo. Late Mahmood Jamo ka aulung kita nghupa ka felicitation ko iye nalung takam ragudung station ayala habilangka ngalung ka hilo ka program holo ka ponda bata pa abina ngalung ka Honorable Chief Minister Arunachal Pradesh nalung felicitation iye. And I would like to inform that these grandsons and great daughters, they are the 5th generation of late Mahmood Jamo's lineage. Late Mahmood Jamo has been one of the freedom fighters of our state. He has fought against the Britishers for the freedom of motherland. He has sacrificed his own life in this quest of freedom. He has killed the British officer Colonel Williamson at Komsing village. And another team of his followers killed Dr. Gregerson at Bodet Eastern district on the 31st March 1911. Bye. आजादी के अमृत महोत्सव के जरिए हम लोग उन अनसंग हीरोज को सम्मानित करते हैं, स्वतंत्र सेनानियों को जिसको जो इतिहासकारों ने पहचाना नहीं है, जिसके नाम इतिहास से विलुप्त है। वैसे ही एक स्वतंत्र सेनानी लेट मकबूल जामो रहे हैं, जिन्होंने भारत देश के आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और इसी लड़ाई में खुद भी शहीद हो गए। Moving on to the next items of today's agenda, we will have a felicitation to the chief guest. Moving on to the next items of today's agenda, we will have a speech. For that speech, I would like to welcome Honorable MLA Sri Kaling Moyo, sir. Sir, please. मंच पे विराजमान हमारे आज के प्रोग्राम हर घर तिरंगा चीफ गेस्ट हमारा लोकप्रिय नेता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश सर पेमा खांडू जी, गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल एमपी Kapil Gaoji, Honorable MLA Linong Iring ji, Honorable MLA Kento Yini ji, Honorable MLA Ojing Kasing ji, Honorable MLA Nalan Tabu ji, Chief Secretary Dharmendra ji, Commissioner to Honorable Chief Minister, former MLA,
Bosram Siramji, Oma MLA Tatung Jamoji, DC Pasigat, SP Pasigat, Commandant, Madam JPM, Gram Chairperson, HOD, President, Secretary Executive Members, Nino Society, great grandson of Madmur Jamo and family, Ram Bura, Ilok Agam Long or Atu Bina Tapan. Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of independence. पूरा देश में सेलिब्रेट कर रहा है. Moving on, I would like to request the organizing committee to felicitate our Honorable Guest of Honor, Honorable MP Sri Kapil Dawsar. Moving ahead, I would also like to request the organizing committee to felicitate Sri Dharmendra Lanik, Chief Secretary. Moving ahead, I would like to request the committee to felicitate Sri Sonam Chambe, Commissioner of the CN. Thank you so much for the service. And moving ahead, now we will have another speech. For this speech, I would like to welcome the Honorable Member of Parliament, Sri Kapil Dawsar. सभी लोग आजादी के अमृत महोत्सव हर घर में जनता लोग हो गए. चीफ गेस्ट पे आना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब, ते लोग विक्की आमीन गेना ऑनरेबल एमएलए कालिंग मोयोंग केंतो जी नी आलो तक के ऑनरेबल एमएलए बांगिन बोले लोग के ओजिंग तासिंग रुंगो लोग के तालेम ताबो देखे मोलू के नतून चीफ गेस्ट चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र साहब आप हाथ उतार दीजिए कि अरुणाचल लोग मोलू के भूपा के चीफ सेक्रेटरी है. ये लोग के ऑनरेबल एमएलए इरिंग साहब, ये लोग डीसी साहब, ये लोग मोलू के कमिश्नर टू चीफ मिनिस्टर सोनम सोम्बे साहब, ये लोग हुई लोग के लोग लोदुम बोम दा ऑनरेबल फॉर्मर एमएलए फॉर्मर मिनिस्टर गांव पंचायत लीडर जिला परिषद मेंबर दोलुंग आदुम हिना ताकाम लुइन मांगकोन देगे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आना ताकाम हुई लोग के लोंगा है बोत्तरू ना लोंगा को 1947 देख के इला सादीन पारों में भूपांगोलू 75 years तोदी तागिंग कनिक कोलांग तांगो पे इकाई देम लोग है भूपांगे बोलूगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिगोम्बे भारत गीता हो गए एंगो ताकरे एकुम लो जानदा तुलंका हिम लोग है बोत्तेरु पे मानिलंका एम लुनाम लेगा पे बोलू हुई लो मानमुर जामो के मेमोरी जगह होलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर में फ्लैग होस्टिंग है विदो पे देलो के 1947 देलो बेलो दीपा बेलो फर्स्ट नेशनल फ्लैग होस्ट हो देलो मोलू के ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू मोलू हाब हुलांकुला बेलो सेरेन पिंकाई दीपा पिंकाई बेलो फ्लैग होस्टिंग है विदो अरुणाचल पे तो मांग भारत गीता होलो अदिन ना फ्रीडम फाइटर कातुदी अदिन ना फ्रीडम फाइटिंग इकोलोगे इंसिडेंट जगह ताका में कादुदी देलो लोंगा हिलो के लोंगा होलो फ्लैग होस्टिंग इला वार मेमोरियल ताका में बिजिला देम प्रोग्राम में बिदो पेलुतु
Hilongo holongo yagru dolu holo ala manmur jamo dege namu nonang pisong tabing lotiang talo dege lugrung tamuk delok de Williamson में उम्मीद है कि पना डोलू में दिलों के होपत है कि डॉक्टर गर्गसन में पने लोमलो दारंग बापोक जेरंग बुलुम ताकांग को हिलो के लोगा हलोमलु मिपा है पे लगी दो सादीन पामा दापे मुलुक आदिये मुलुक अरुणाचल हलो एंग्लो आबर वारदे सारी बार वारे तांबुगत के इलांगेला कोमसी तेलोकाई सारी बार को ब्रिटिश से मोलुगे आदिये इमिन हितु तेलोगे कामतिये कोम लड़ाई इतु वांगसुए कोम लड़ाई इतु देगे आखे कोम लड़ाई इतु देम ताकाम हिलो मोलु मुइपा पे लगी दो देलो एंग आकेंग अन्ना को मोलु अमिये जोगलिक तु एंग्लो आबर वारलो देम बुलुम ताकाम कोम अमिनम केनिन मांग कोम देम बुलुम ताकाम कोम मोलु अरुणाचल गिरते कोने हलो भारत गिरता हलो देमोलु ताकामे मुला है पे लगी दूं आरु केली पे लगी दूं देलो काकोने 75 years स्वाधीनता हइलो 15 আগস্ট হলো এদিক না বছরে মোলু येतन आरु आपना 25 years लेगा पे मोलु हुपा के लोग के प्रिपेयर इपे लगिए दे मोदी साहब के दोइंग 75 years holo India heng molu Arunachal heng molu edit kol development ikan de ye milo apena 25 years holo leader log ke ila officer ila dolu log duna taka me ko meli dola Arunachal gite konem Bharat gite konem kape di aru unoti ya pe lagien independent log 100 years idolo de log lega pe molu prepare pe lagi do emla Narendra Modi migom luliktung Kina mengo dolung ai rupe mido ngok hupa kagom dolung ekta ati ko request pe mihina me manmur jamo nino petom manmur jamo mang Arunachal ho gaye bane manmur jamu hai delok ke hi hupa ke ngok amin minpa nam 7 jon ami him ko ngolu ek sath pe manai pe lagi do manmur petom mang hi amuge nonange tabinge aluwe dege daronge jerange him guru phim golu lekope adiye nek ape na holo golu mani pe lagi manmure nuyen golu hi nino petom kaha tathi doidu him guru phim amin min gayela open taka me ko melila golu adi amin loge him pitlom paitar kiti him me onar do pe आपे नाम दिताक ताका मेलो ओपिन ताका में लेकोला आदिये लेकोला अरुणाचल लेकोला हिमेंगो मानिलांका एम नलुम बुलुम ताका में रिक्वेस्ट गेदोला येगा बोना ओनाबुल एमएलए किदिंग एम कोम फॉर्मर एमएलए किदिंग मिनिस्टर किदिंग एम कोम नलुम कोम तेगे गाम एम कोम एगे आदि बाने केबंग एम कोम वो रिक्वेस्ट दूं हिम आती हिमे अमुगा अंगु पे ही है कालू आंगू पे ही है यिरंगे आंगू पे ही है जरंगे दारंग आंगू पे ही नाम दे दोलुंग हियाई मांग आदिये लेको पे हिम सिले परेशान आपे ना लोग के मुल इलांग कुछ काम दुगे दोला मोक आगो में भलो लुरी दूं जय हिंद मिलुना मिबुए कामानाम बोलुमे रिते कामतिदम कामपसी होल्ला ओने सिरिदम कामपसी होल्ला मिलुआ जोंगना तेदागम यमने कोरंगे बंदागे जेरिना कोंकिए बोतके अमने बुइदुंगे लोमलोके जेरिना कोंकिए बोतके अमने बुइदुंगे बापोके मुगिए कोंकिए बोतके अमने बुइदुंगे लुन्नुके तादरे कोंकिए बोतके अमने बुइदुंगे लोलुके बजुंगे क्योंके बोतके अमने बुइदुंगे बुइसोंके जमाने कोंकिए बोतके अमने बुइदुंगे तपियांके Matire kongkie boteke, amine buidunga lotianke, turbunga turunga dalena bununga, nene mipe, bogeda. Antar
आप सभी को नमस्कार। आज यहाँ पर याग्लू में हमारे साथ उपस्थित अपना ईस्टर्न क्षेत्र के सांसद और हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश के सीनियर लीडर श्री कपिल गांव जी, यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे दोस्त श्री कलिंग मोयोंग जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे नया चीफ सेक्रेटरी साहब श्री धर्मेंद्र जी। चीफ सेक्रेटरी साहब आप थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, आप लोग जोर से ताली मारिएगा। अपना नया चीफ सेक्रेटरी है, अभी कुछ दिन पहले ही अरुणाचल में ज्वाइन हुआ है। और यहाँ उपस्थित अपना इस डिस्ट्रिक्ट के सभी ऑनरेबल एमएलएस, फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर एमएलए, और यहाँ उपस्थित अपना डीसी साहब, एसपी साहब और इस डिस्ट्रिक्ट के पूरा सीनियर ऑफिसर्स और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच उपस्थित, अपना जितने भी गांगुरा गांगुरीज, हमारे स्कूल के प्यारे बच्चों, और खास करके आज जो ओकेजन हम लोग यहाँ पर याग्लू में जो हम लोग मना रहे हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव, और हर घर में तिरंगा और हर दिल में भी तिरंगा, तो यहाँ पर उपस्थित अपना महमूद जामो जी के हमारे जितने भी जो रिलेटिव्स आज यहाँ पे शामिल आए हैं, तो सबसे पहले मैं अपने सरकार की ओर से इन सभी रिलेटिव्स को मैं आज के छोटा सा फंक्शन जो यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है उसमें हम स्वागत करते हैं। आज के ये कार्यक्रम आप सबको पता है कि अभी देश का आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस हम लोग पूरे देश भर में मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कदम उठाया है कि जो देश 75 इयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस हम लोग जो मनाएंगे, तो अक्रॉस कंट्री में जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जितने भी जो अनसंग हीरोज हैं, उन सभी को याद किया जाए। तो अपना राज्य में आप सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा ट्राइब बसे हुए हैं, और जितने भी जो अनसंग हीरोज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनका हिस्ट्री निकालने के लिए प्रॉपर एक हम लोग का स्टेट लेवल में एक हाई लेवल कमेटी जिसको हेड कर रहा है अपना माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री चोना मीन जी के अध्यक्षता पर एक पूरा स्टेट में एक कमेटी गठन किया, और उस कमेटी ने RGU राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का साथ में पार्टनरशिप करते हुए अरुणाचल प्रदेश का सारा डॉक्यूमेंटेशन अभी लगभग हो रहा है। 80% ऑफ द वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और रिसेंटली कैबिनेट में भी उस मैटर को प्लेस किया है, और कैबिनेट ने अप्रूवल देकर वो जितने भी जो हिस्ट्री है, अनसंग हीरोज का जो पार्टिसिपेशन है खास करके एंग्लो वार्स में, उन सारा को हम लोग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ऑलरेडी भेज दिया है। आप सभी को मैं ये बताना चाहेगा कि अरुणाचल प्रदेश में कुल मिला के बहुत जगह में एंग्लो का साथ में, ब्रिटिशर्स लोगों का साथ में युद्ध हुआ है। आप आज हम लोग यहाँ सियांग बेल्ट में हैं, और अपना आदि जो जनजाति है आप लोगों का इस जमीन पर है। तो आप सबको पता है कि एंग्लो अबो आदि वार जो हुआ है 4 फेजेस में हुआ है। सबसे पहला 1858 केबांग में हुआ, इसके बाद फिर 1859 में रोंगकांग में, फिर 1894 गम्बुक एरिया में, इसके बाद में यहाँ पर जो हम लोग आज यहाँ पे जो फंक्शन जो मना रहा है 1911 में यहाँ पे कोमसिंग एरिया में ये हुआ था। तो
एंग्लो अबोर वार कुल मिला के आपके जो ट्राइब है, आदि ट्राइब का जो पार्टिसिपेशन है वो कुल मिला के 4 जगह में हुआ। उसके अलावा अगर हम लोग ईस्टर्न अरुणाचल से शुरू करेगा तो हम लोगों का ईस्टर्न अरुणाचल में जो ट्राइब है वांगचो ट्राइब, वहां में भी जो नीनू मैसेकर हुआ है वांगचो ट्राइब्स का, वहां पे वांगचोस और एंग्लो का बीच में वहां पे वार हुआ। उसके बाद थोड़ा इस तरफ आने से हमारा वहां पे सिंगपो का साथ भी वार हुआ, खमती का साथ भी ब्रिटिशर्स लोगों के साथ में वार हुआ। इसके बाद फिर अपना ईदू मिशमी का साथ भी ब्रिटिशर्स का वार हुआ। और यहाँ से चलते अगर हम लोग वेस्टर्न की तरफ में जो हम लोग बढ़ेंगे तो एक्सट्रीम वेस्टर्न में जो बालकुम एरिया है वहां पे जो आका जो ट्राइब है, उस वक्त में जो आका राजा हुआ करता था, तो आका ट्राइब का साथ में भी एंग्लोस का ये वार वहां पे हुआ था। तो कुल मिला के जो कमेटी मैंने आप लोगों को जो यहाँ पे जिक्र किया, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो चेयरमैनशिप में जो कमेटी गठन किया है, अभी तक जो लिस्टिंग आउट किया है सभी वार्स को लेके तो जो अनसंग हीरोज और उस जमाने में जिन्होंने अपना जान गंवा के अपना देश के लिए जिन्होंने जान गंवाया है और जिन्होंने जो लड़ाई में जो हिस्सा लिया है, कुल मिला के अभी 157 लोगों का नाम अभी तक आया है। कुछ अभी रिपोर्ट जो है कुछ ट्राइब्स को और भी अभी कंपेलेशन अभी हो रहा है। तो कुल मिला के अभी तक जो रिकॉर्ड जो सबमिट हुआ है ऑफ द अनसंग हीरोज, वो कुल मिला के 157 लोगों का नाम अभी आया है। तो उस वक्त में जो ब्रिटिशर्स लोग जो इस देश में जो करीबन 200 साल जो यहाँ पे राज जो किया है, तो वो लोग ने भी चाहा कि अरुणाचल प्रदेश, उस वक्त में तो वैसे अरुणाचल प्रदेश बोल के नाम तो नहीं था, मगर हम लोग का अभी जो प्रेजेंट जो स्टेट है अरुणाचल, उसको भी यहाँ पे आके रूल करने का वो लोग ने काफी कोशिश किया। वेस्टर्न साइड से जैसे मैंने कहा कि आकाश से लेते हुए लोंगडिंग साइड जो वांगचोस, वहां से बहुत जगह से वो लोग घुसने का तैयारी तो किया, मगर हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का सभी जो ट्राइबल जनजाति है सभी लोग ने एकदम बहुत ही ब्रेव दिखाया और उन लोगों को अपना हिल एरिया में, अपना अरुणाचल में घुसने नहीं दिया। तो इस प्रकार का वीरता हम सभी अरुणाचल ट्राइब में बसे हुए हैं। तो मैं सभी अपना सरकार की ओर से आज का जो अमृत महोत्सव है, इस खुशी ओकेजन पर मैं जितने भी जो हमारे जो अनसंग हीरोज है, जो लोग शहीद हुआ है और साथ साथ जिन्होंने इस सभी युद्ध जो वार में जो पार्टिसिपेट किया है, उन सभी लोगों का आज मैं याद करते हुए उन सभी को अपने अरुणाचल प्रदेश का पूरा जनता की ओर से मैं आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज बहुत मेरे लिए बहुत ही खुशी और गर्व का बात है कि मैं आज जो 13 अगस्त जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हर घर तिरंगा का जो प्रोग्राम इनिशिएट किया है देश भर में, 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सभी घरों में अपना तिरंगा जो लहराना चाहिए। तो इसका पार्टिसिपेशन पूरे देश में जोर और शोर से हो रहा है। मैं कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैं उत्तराखंड वहां मसूरी में जो अपना लाल बहादुर शास्त्री जो एकेडमी है वहां पे 2 दिन पहले मैं था। कल मैं वहां से जो लौटा तो देखा रास्ता में भी पूरा बाइक में, गाड़ी में नेशनल फ्लैग के साथ में लोग जुलूस निकल रहा है, रैली भारत माता की जय का रैली निकल रहा है। जैसे मैं डिब्रूगढ़ लैंड किया, वहां से भी जब मैं देखा तो वहां में भी काफी, हर एक जगह में, दिल्ली में देखा, हर एक जगह में अभी काफी जोर से पार्टिसिपेशन हो रहा है। और आज अरुणाचल प्रदेश में 13 तारीख को मैंने अनुरोध किया था सभी अरुणाचल प्रदेश की जनता को कि आज 13 तारीख में ही हम लोग सभी घरों में हम लोग झंडा लहराएंगे। और जिसे पासीघाट पहुंचा देख के बहुत अच्छा लगा। इस सभी घरों में लगभग तिरंगा जो है आज 13 तारीख को ही हम लोग ने लहरा, ये हम लोग ने फैला दिया है। और आज यहाँ पर हम लोग जो मातमुर जामो जी और उनके पूरा टीम जो 1911 में जो एंग्लो अबोर वार जो लास्ट फेज में जो हुआ आफ्टर रीजन में, तो 1911 में यहाँ पे हुआ था, उसमें जो ब्रिटिश जो ऑफिसर था, जैसे हमारा ऑनरेबल एमपी साहब ने जो कहा कि विलियमसन नाम, न्यूल विलियमसन नाम के जो ऑफिसर को यहाँ पे आगे घुसने नहीं देकर उनको यहीं में मार गिराया है। तो वहां पे अभी काफी सारा युद्ध हुआ है। और कुल मिला के यदि आपका आदि का जो रिसर्च टीम जो डॉक्यूमेंटेशन करके जो दिया, कुल मिला के आदि ट्राइब से करीबन 60 लोग अनसंग हीरोज जो 60 लोगों का नाम आया है सरकार के पास में। इन्होंने वेरियस जो 4 युद्ध जो एंग्लो अबोर वार जो 4 फेजेस में हुआ है आपका इस रीजन में,
वहाँ पे 60 लोगों का, आधी लोगों का नाम आया है। उसको ऑलरेडी हम लोग ने रिकॉग्निशन करते हुए भारत सरकार को भी हम लोग ने नाम को फॉरवर्ड किया है। तो हम लोगों का ट्राइबल का जो हमारा जो एटीट्यूड है वो सदियों से ही हम लोग नेचर के साथ में बैठते हैं, नेचर के साथ में जीते हैं। नेचर को प्रोटेक्ट करते हुए हम लोग अपना ट्रेडिशन कल्चर को भी प्रिजर्व करते हुए हम लोग बैठ के आया है। तो उस जमाने में जैसे मैंने कहा कि 1858 से लेते हुए जो 4 फेजेस 1911 में जो यहाँ पे युद्ध हुआ है, तो आज के दिन में चूंकि हम लोग यहाँ पे अपना श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित किया है, उन सभी शहीदों को याद करते हुए और अपना जगह को प्रोटेक्शन जो वो लोग ने दिया, और आज हम लोग जिस हिसाब से अपना जगह में आराम से जो बैठा हुआ है, तो ये सब उन लोगों का ही देन है। उन लोगों का जो खून बहाया, जिन्होंने यहाँ पे युद्ध में जो पार्टिसिपेट किया, उन लोगों का श्रद्धांजलि और उन लोगों का आत्मा को शांति के लिए हम लोग भी अपना, हम लोग जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग चाहे गवर्नमेंट सरकार में कर्मचारी होगा, कोई पॉलिटिशियन होगा, या कोई गांवबुरा है, यहाँ पे कोई पंचायत के लोग हैं, या कोई आम पब्लिक है, कोई बिजनेसमैन है, हम लोग चाहे जो भी काम करते हैं उसको हम लोग ऑनेस्टली अपना समाज का विकास के लिए, अपना डिस्ट्रिक्ट का विकास के लिए, राज्य का विकास के लिए और इस देश का विकास के लिए हम लोग डेडिकेट करना ये बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज उस जमाने में आजादी के जो फ्रीडम फाइटर्स लोग ने जो अपना खून बहा के जो आजादी हम लोगों को प्राप्त हुआ है, अगर हम लोग ईमानदारी से अगर हम लोग आज के दिन में अपना ड्यूटी नहीं निभाएंगे, तो उन लोगों ने जो खून बहाया है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आज के इस ओकेजन में हम लोग दोबारा फिर रिट्रेट करते हुए हम लोग को एक सेल्फ कमिटमेंट होना चाहिए कि उन फ्रीडम फाइटर्स लोग ने जो खून बहाया है, उन फ्रीडम फाइटर्स का खून जो है वो वेस्ट नहीं होगा। हम लोग उसका बदले में अपने जगह के लिए और इस देश, इस राज्य के लिए हम लोग पूरा तन मन, पूरा दिल से हम लोग काम करेंगे। ये आज के दिन में हम लोग रिजोल्व करना बहुत ही जरूरी है। अभी आज मैं जब यहाँ से अपना ऑनरेबल एमपी और अपना ऑनरेबल एमएलए श्री कलिंग जी के साथ जो पासीघाट से यहाँ पे जो आया, तो मैंने कलिंग जी को पूछा कि क्योंकि कलिंग जी ने काफी एक रोड प्रोजेक्ट के बारे में काफी परस्यू किया है, जो पासीघाट से लेके डेमी जो गांव है वहां तक, और बीच में अपना यहाँ के जो यागलूम जो गांव है वो भी उसका अंदर में आता है। तो कुल मिला के पासीघाट से लेके रेमी तक का 20 किलोमीटर का ये रोड है। तो ऑनरेबल एमएलए यहाँ का कलिंग साहब बहुत पहले से हमको ये बोलते आया कि ये रोड काफी इम्पोर्टेंट है, और मैं 2018 में भी आप लोगों का यागलूम में यहाँ पे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को उद्घाटन के लिए 2018 में मैं यहाँ पे आया था। तो वहां में भी हमने देखा रोड कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। तो मगर इस बार ऑनरेबल एमएलए का अपना जो उनके काफी मेहनत और कोशिश के कारण से इस रोड प्रोजेक्ट को हमने सैंक्शन सीआरएफ का अंदर में सैंक्शन कर दिया है। कुल मिला के 30 करोड़ 71 लाख का ऑलरेडी हमने सैंक्शन कर दिया है। तो इसका पूरा क्रेडिट अपना हमारा कलीग ऑनरेबल एमएलए श्री कलिंग जी को मैं देता हूं। उन्होंने काफी मेहनत किया है। तो सरकार की ओर से मैं आप सभी खास करके जो यागलूम के जो सीनियर लीडर्स है, यहाँ के पंचायत और पब्लिक है, आप सबको भी ये निवेदन करेगा कि अभी रोड टेंडर फटाफट टेंडर हो जाएगा, और काम में बिल्कुल चाहे जो भी कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है टेंडर, उसको काम जो है अच्छा से उनको वहां पे करने देना है। कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी पर बिल्कुल आप लोग कॉम्प्रोमाइज होने मत दीजिएगा। आप लोगों का ही रोड है, रोड अच्छा होगा तो आप लोगों के लिए ही बेहतर होगा। इसलिए आप लोगों की अच्छा से नजर रखना है, रोड क्वालिटी से मेंटेन करके बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सरकार की ओर से जो सैंक्शन करना था हमने काम करके दे दिया, और एग्जीक्यूशन लेवल में आप लोग अभी अच्छा से मॉनिटर करके अपना रोड है तो देखभाल आप लोग अच्छा से करना चाहिए। और साथ ही साथ जो आज जब यहाँ जब आए है तो अपना मोयोंग साहब ने इस एरिया के लिए 1-2 पॉइंट जो यहाँ पे जो रखा है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो मुसुक जो काफी पुराना हो गया है और छोटा भी हो गया है, उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट और स्ट्रक्चर नया बनाने का जरूरत है। ऑलरेडी हमको कागज भी मिल गया है, तो मैं अभी वापस जाके कुछ ही दिनों पर अभी मैं स्कीम्स भी फाइनलाइज कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली आपका ये जो मुसुक जो है यागलूम के लिए मैं जरूर आपको सैंक्शन करके दूंगा। और
और साथ साथ इस एरिया के लिए जब मैं 2018 को आया तो सरकार की ओर से ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे ऑफिसेस वगैरह तो बना दिया। तो अभी आप लोगों का भी चाहत है कि यहाँ पे एक सर्कल एक होना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पासीघाट से थोड़ा सा दूर भी पड़ जाता है। तो ऑलरेडी मैंने जो नया चीफ सेक्रेटरी है उस नोट एमएलए साहब ने जो नोट लिखा है उसको मैंने प्रोसेस के लिए लिख दिया है। तो डेफिनेटली जो प्रोसेस करके जो अपना टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ होता है गवर्नमेंट का, वो सब फाइल अच्छा से होने के बाद हमारा लेवल तक हम जो पहुंचेंगे तो हम आने वाला दिनों में डेफिनेटली उसको हम एक पॉजिटिव साइड में हम उसको जरूर देखेंगे। और साथ ही साथ एक मेमोरेंडम पॉइंट में यहाँ मोयंग साहब ने यहाँ पे जिक्र तो नहीं किया, मगर ऑलरेडी कागज में लिखा हुआ है कि इस एरिया के लिए एक आउटपोस्ट पुलिस का भी यहाँ पे जरूरत है। तो मैं इस मैटर को डीजीपी का साथ में मैं जरूर जाके डिस्कशन करूंगा। आज हमारा जो नया चीफ सेक्रेटरी है श्री धर्मेंद्र साहब, ये आईएएस 1989 बैच का आईएएस ऑफिसर है। कुछ दिन पहले ही जैसे मैंने कहा वो यहाँ पे ज्वाइन किया है और आज उनके लिए भी बहुत अच्छा एक अवसर है। सियांग बैच में फर्स्ट टाइम वो यहाँ पे पहुंचा है और आज को जो ओकेजन है हमारा आजादी का अमृत महोत्सव और अपना इस जागरूक विलेज में जो अपना जो फ्रीडम फाइटर्स है यहाँ आके श्रद्धांजलि देने का भी मौका मिला है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एक अवसर है। सीएस साहब को वैसे तो मैं पूरे राज्य के बारे में ऑलरेडी ब्रीफिंग कर चुका हूँ और सीएस साहब काफी लर्नेड है, बहुत ही इंटेलिजेंट भी है और जानते हैं अरुणाचल का डिफिकल्टीज एज वेल एज हमारा जो पोटेंशियल एरिया है वो भी जानते हैं। तो हम सब जो सीएस साहब से काफी उम्मीद है कि इस राज्य को और भी आगे लेके जाने में आपका बहुत अच्छा योगदान हम लोगों को मिलेगा। डेवलपमेंट का जो हिस्ट्री है हमको बार बार बताना जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का ही आंखों के सामने पिछले जो लास्ट 6-7 साल में जो यहाँ पे काम हुआ है उसको हमको बताना जरूरत नहीं, आप लोग सब यहाँ पे विटनेस रह चुका है। उस जमाने में पासीघाट आपको जो एरिया था किस हालत में था और अपना सरकार आने के बाद कैसे टर्न अराउंड हो गया है इस पूरा एरिया में, वो हमको बताना जरूरत नहीं, आप लोग पूरा इसका एक विटनेस रह चुका है। मैं आज इस ओकेजन पर क्योंकि आपके सियांग एरिया में आया हूं तो अपना जो आपका जो एपेक्स जो बॉडी है आदि बाने केबांग और जितने भी जो उनका सब्सिडियरी जो विंग है उन सभी मेंबर्स को भी मैं आप सभी पब्लिक के लिए सीबीओस की तरफ सीबीओस को मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ भी डेवलपमेंटल एजेंडा में हमेशा आदि समाज जो है एक साथ आप लोग ने साथ निभाया है। इसीलिए एडी के और पूरा आदि के जितने भी जो लोग हैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जैसे कपिल साहब ने कहा कि अभी दीपा में भी वहाँ पे एक फंक्शन हो रहा है। दीपा का हिस्ट्री ऑलरेडी आपको पता है कि जो देश जब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला तिरंगा वो दीपा में लहराया था। आज हमारे साथ दिल्ली से अपना ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर लॉ श्री किरण जी भी आए हुए हैं, वो सीधा वहाँ दीपा चला गया, तो उनका कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा है। आज हमको शाम को ईटानगर भी लौटना है और कल सुबह भी जो फंक्शन है हर घर और हर दिल तिरंगा, उसका भी हमको कल फंक्शन वहाँ ईटानगर में भी अटेंड करना है। तो आज आप सब लोग ने टाइम निकाल के और बहुत शॉर्ट नोटिस में आप लोग ने यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब और सभी ऑफिसर्स और खास करके यहाँ के जो लोकल एनजीओस आप लोग ने जो इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने का जो योगदान दिया है बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा केवी कस्तूरबा गांधी के जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग ने बहुत अच्छा आदि पेट्रोटिक एक नंबर हमको समझ में नहीं आया, मगर लगा कि डेफिनेटली इट इज एन पेट्रोटिक यहाँ पे जो कल्चरल प्रेजेंटेशन किया बहुत अच्छा शोकेस आप लोग ने किया है। आप सबसे जाते जाते मैं अंत में यही निवेदन करेगा कि अपना एजुकेशन पर हम लोगों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आजकल जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेजेस में है, जो यूथ है वही हमारा भविष्य है। इसलिए यूथ लोगों को, स्टूडेंट्स लोगों को समाज अच्छा से गाइडेंस देना बहुत ही जरूरी है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी जब आते हैं तो बहुत अच्छा काम भी होता है और बहुत खराब काम भी होता है। तो इसलिए समाज के एल्डर्स, हमारे जितने भी जो पेरेंट्स हैं, हम लोगों को अच्छा से पेरेंटिंग करना बहुत ही जरूरत होता है। सोशल मीडिया का जमाना है, जैसे मैंने कहा कि अच्छा होने के लिए भी टाइम नहीं लगता है और खराब होने के लिए, बिगड़ने के लिए भी टाइम नहीं लगता है। इसलिए समाज में हमारा जितने भी जो ट्राइबल्स है
सभी को अपने जो यंगर जनरेशन को अभी अच्छा से हैंड होल्डिंग करते हुए उसको अच्छा से गाइडेंस देते हुए हम लोगों को लेके जाना बहुत जरूरी है। उसके लिए एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे अरुणाचल प्रदेश में आदि समाज वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइप में हम लोग काउंट करते हैं और सदियों से ही आपका योगदान इस राज्य को आगे लेके जाने में काफी रहा है। इस राज्य का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी अपना ही आदि समाज से है, अपना श्री गेगोंग अपांग जी। काफी लंबे समय तक इस राज्य को उन्होंने संभाला है। तो आप सभी का पॉलिटिकल स्तर में भी हो, आपका चाहे आपका इंडिपेंडेंस अपना फ्रीडम फाइटर्स के रूप में भी हो, या हर एक क्षेत्र में अपना आदि समाज का योगदान काफी अच्छा रहा है। मैं सरकार की ओर से अपने पूरा सियांग बेल्ट आपके आदि समाज के लिए जितना हो पाएगा डेफिनेटली सरकार अच्छा से हम लोग काम करेंगे। एंड लेट अस ऑल बी पार्टनर्स लाइक बिफोर। एक साथ हम लोग अपना इस सियांग रीजन को, अपना आदि को और पूरे अरुणाचल के ट्राइब को, इस प्रदेश को हम लोग आगे लेकर एक्सट्रीम अरुणाचल स्पिरिट में हम लोग लेके जाएंगे। तो इतना कहते हुए एक बार फिर मैं आज मतमुल जामोद जी के इस जो मेमोरियल में जो आज हम लोग आया है, एक बार फिर मतमुल जामोद जी और उनके पूरे साथी इन्होंने एंग्लो अबोर वार में जो साथ देके हमारा यहाँ पे जो युद्ध जो चेहरा है उसके बाद बहुत जो सक्सेस आया है, उन सभी फ्रीडम फाइटर्स और सभी अनसंग हीरोज को एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपना वाणी को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय अरुणाचल। That was a very inspiring speech from our honorable chief guest of today's program, willing acceptance of our proposal and taking the time out from your busy schedules and marking this glorious day, this auspicious day with your glorious presence. Thank you so much. And I would like to inform that the dining hall has been set on the backstage and the lunch is ready. I request the dais and the dignitaries to proceed for lunch. Thank you so much. Dorong takam CM sarbe samay kamanam laga pa angorda kuno takam urga pa kalik bilangka nagka lunch ma on the back stage पर तैयार ला मतुन dorong takam gairu urga pa lunch da bilangka HODs, head of the departments request है back stage में lunch dining hall ready है, lunch ready है, आप सब फ्री जाके लंच कर लीजिएगा। I would like to request head of department to have to proceed for lunch and that is it. Then stage में lunch ready है HODs के लिए and for general public उनके लिए वो रोड साइड में से lunch ready है। दोनों के बाद then स्टेज पर HOD के लिए lunch दिया गया तक दोनों आदमी अपन लगाते हैं रोड साइड पर लंच रेडी दूँ और तकाम तर हाल वाला लंच जवाब करना है।